اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی کھولنے جا رہا ہوں جس کے اوپر نہ ہی تو آج تک کسی بھی پاکستانی میڈیا نے اس کے اوپر کوئی پروگرام بنایا ہو، نہ ہی ہمارے کسی بھی سیاسی لیڈر نے اس ٹریجڈی کے اوپر کوئی بات کی ہو۔ ایک ہماری بیٹی جو کہ اپنی شادی کے سرخ جوڑے کے اندر بیٹھی ہو اور ایک دم اس کو پتہ چلے کہ کوئی بھی ان کا رشتہ دار، ان کا قریبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر کیا ٹریجڈی گزرے گی۔ اسی طرح کا واقعہ حاجی جلال اور ان کے دو بیٹے جن کو 8 جولائی 2009 میں لانڈی بڑے بازار میں دن کے ٹائم قتل کر دیا گیا، اور وہ اس وقت اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان، اس کی شادی کے لیے کچھ ارینجمنٹ کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن ان کو درندوں نے بڑے بازار میں قتل کر دیا۔ ناظرین سوچئے اس بیٹی کا جس کا باپ اس کی خوشی کے لیے ہر وہ تمنا پوری کرنے کے لیے بازار نکلا ہو، اور اچانک چیزوں کے بجائے باپ کا جنازہ اس بیٹی کے سامنے آ جائے، اس بیٹی کے سامنے اس کے دونوں بھائیوں کے جنازے سامنے آ جائیں، تو اس بیٹی کے اوپر کیا گزرے گی۔ ناظرین، ہم سوچتے کچھ ہیں لیکن ہو کچھ جاتا ہے۔ انسان کیا پلان بناتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں پتہ نہیں کون سے پلان ہمارے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب اس کہانی کے بیچ میں آپ کو وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایسے حقائق آپ کو بتاؤں گا، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ الطاف حسین اور اس کا کرمنل مافیا جو گاڈ فادر، ایک نعوذ باللہ اپنے آپ کو وہ خدا بنا بیٹھا ہے، جو کہ آج کل اپنے آپ کو روحانی باپ تک بھی لے آیا ہے، اس شخص نے ہزاروں اپنے ہی کارکنوں کو ختم کروا دیا، لیکن کبھی بھی آج تک الطاف حسین نے ایک بھی مرڈر یا ایک بھی کرائم ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ کہانیاں چلتی آ رہی ہیں، سال ہا سال سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارے میڈیا کو اتنی جرت نہیں ہوئی، یا ایون ہمارے سیاسی لیڈران کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ اصل مجرم کو کٹہرے میں لا کھڑا کریں۔ اب اس بچی کا کیا ہوا ہوگا حال جب اس نے اپنے ہاتھوں میں مہندی کی بجائے خون دیکھا ہو۔ میری سوچ میں اس بچی کے ساتھ کچھ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ یہ ویڈیو ایگزیکٹلی اس بچی کو تو نہیں،
लेकिन जो मेरे जहन के अंदर पिक्चर आती है वो इसी तरह की पिक्चर थी। नाज़रीन, क्या उस बेटी की शादी हो गई होगी? क्या उस बेटी ने डोले में बैठ के अपने ससुराल में जाने की तैयारी की होगी, या उस बेटी ने अपने बाप और अपने भाइयों को कब्रिस्तान के लिए रुखसत किया होगा? ये सारे जुल्म, ये सब ट्रेजेडीज क्यों हम आम लोगों के साथ हो रही हैं? उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम अपने आप को मजबूत नहीं करते। इसी वजह से अल्ताफ हुसैन और उसका क्रिमिनल माफिया मजबूत से मजबूत होता जा रहा है। इंसान इस दुनिया से तो गुजर जाता है, लेकिन बहुत सारे सवालात अपने पीछे छोड़ जाता है। इसी तरह हाजी जलाल भी कुछ ऐसे सवालात छोड़ गया है जिसका जवाब या तो अल्ताफ हुसैन के पास है या उन लोगों के पास जो कि अल्ताफ हुसैन की रियलिटी को जानते हैं, और उनमें मैं खुद एक शामिल हूं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन को हमेशा से मैं फॉलो किया है और फॉलो कर रहा हूं। नाजरीन, अल्ताफ हुसैन या उसका क्रिमिनल माफिया किस किस लेवल पर काम कर रहा है और क्या कर रहा है? हाँ, जो हकीकत थी वो ये था, 2005 में जब अल्ताफ हुसैन ने हाजी जलाल को पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर किया, जिस पर हाजी जलाल ने इनकार कर दिया और अल्ताफ हुसैन ने उसको मुतहदा से बाहर निकाल दिया। अल्ताफ हुसैन हमेशा नौज़बिल्लाह खुदा बन जाता है और लोगों से बार बार माफिया मंगवाता है। इसी तरह हाजी जलाल ने कभी भी माफी तो नहीं मांगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन एक्सपेक्ट करता रहा कि हाजी जलाल उससे माफी मांगे। 2008 में हाजी जलाल पाकिस्तान आया। 1 साल बिल्कुल खामोशी से छुपते छुपाते जिंदगी गुजारी, लेकिन इस दौरान डॉक्टर इशरतुल्लाह, जिनके साथ हाजी जलाल और सलीम शहजाद मिलकर इंग्लैंड के अंदर घोड़ों और कुत्तों की रेस पर जुआ लगाया करते थे, मुंहमारी भी हुई, क्योंकि हाजी जलाल को ये चीज़ पसंद नहीं थी और उन्होंने ये डायलॉग भी बोला कि जब 2002 में अल्ताफ हुसैन ने इशरतुल्लाह को गवर्नर की नॉमिनेट किया तो हाजी जलाल ने यह कहा कि क्या ज़माना आ गया है कि अब कुत्तों और घोड़ों की रेस लगाने वाले भी गवर्नर बनेंगे, और यहाँ उस कंपनी का क्या होगा, उनको तो बहुत घाटा पड़ेगा जिन्होंने ये जुआ खाना इन लोगों के लिए खोला हुआ था। मुंहमारी हुई, नाराजगियां हुई। इमरान फारूक, डॉक्टर इमरान फारूक, उन्होंने इनकी सुलह करवा दी, लेकिन ये बात इन्होंने दिल में बैठा ली और इसी तरह वो इनका पीछा करते रहे। वो 1 साल छुपे रहे, लेकिन आखिरकार एक दिन मजबूर होकर जब उनकी बेटी की शादी सर पर आई, घर से बाहर निकले, लेकिन कभी भी जिंदा वापस ना जा सके। नाजरीन, लांडी वो एरिया है जहां पे उनका दिन की रोशनी में भरे बाजार में उनका मर्डर किया गया। वहां पे मुतहद्दा और उनके गुंडों का राज है। अल्ताफ हुसैन शुरू से ही क्रिमिनल है, अपने ही लोगों को मरवाता है और इल्जाम दूसरों पे फेंकता है। उसकी हकीकत इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 25 साल से वो पावर में है, उसकी पार्टी रूल करती है, लेकिन अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान नहीं आता। हमेशा यही कहेगा कि उसके वर्कर्स जब तक उसको नहीं कहते वो पाकिस्तान नहीं आएगा। वो कौन से वर्कर की बात करता है? उन्हीं वर्कर की बात करता है जिसको एक एक करके उसने सबको मरवा दिया। क्या ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन अकेले ने बनाई थी?
खुदारा आंखें खोलिए, सोचिए, जितनी टॉप की लीडरशिप थी उसको एक एक करके मरवाता जा रहा है। जिस किसी शख्स ने भी अल्ताफ हसन के साथ एक दफा भी इनकार किया या ना की, वो दुनिया में नहीं रहा। सोचिए, वजीम अहमद तारिक शहीद से लेकर अब टिल सो फार कितने लोग कत्ल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी लोगों को इंसाफ नहीं मिला। अल्ताफ हुसैन सियासी पार्टी के रंग में एक माफिया चला रहा है, एक सिंडिकेट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद का ख्याल करता है। अब हाजी जलाल इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे अल्ताफ हुसैन के सीक्रेट ले गए, और वो अल्ताफ हुसैन की ख्वाहिश भी ऐसे ही होती है कि जो शख्स उनसे गद्दारी करता है वो दुनिया में नहीं रहता। तभी तो उन्होंने ऐलान किया या स्लोगन बनाया कि जो अल्ताफ का गद्दार है वो मौत का हकदार है। ये ऐलान या ये नारा किसी वर्कर ने नहीं बनाया, ये अल्ताफ हुसैन का खुद बनाया हुआ है, और वो आज तक करता आ रहा है। मैंने इस केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैंने उन तमाम क्रिमिनल्स को फाइंड आउट किया जो कि हाजी जलाल और उनके बेटों के कत्ल में शामिल हैं। हाजी जलाल 1987 में काउंसलर बने, मुतहदा के लिए काम किया। मुतहदा की खातिर कुछ ऐसे स्टेप उठाए जो कि अल्ताफ हुसैन ने खुद ऑर्डर किए, यानी कि मेजर कलीम के किडनैपिंग का केस। जेल में वक्त गुजारा, जेल से बाहर निकले, लंदन चले गए, ग्रेट ब्रिटेन की नेशनलिटी हासिल की, फिर उसके बाद एंड तक जब तक उनका मर्डर नहीं होता। लेकिन ये क्या ट्रेजेडी नहीं कि ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ना ही ग्रेट ब्रिटेन ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, या किसी ने फॉलो किया हो कि कम से कम उस फैमिली को इंसाफ मिले जिस फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी हुई। इसी वीडियो में ही मैं ग्रेट ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करूंगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यूके गवर्नमेंट काइंडली प्लीज इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट and find out the real criminals. And I have given the names of all the criminals involved in the murder of Haji Jalal, and Haji Jalal was your national. Please, you have a very good impression in all over the world for providing a good justice to the people. Just think, in case of USA, if Haji Jalal could have been from USA up till so far, I am sure they could have sent their helicopters, gunship helicopters and aircrafts to 90, because the reality is the same, that Altaf Hussain is the leader for the criminals, same as Osama bin Laden was the leader for the terrorist. MK Altaf Hussain's mafia is not the peace-loving people. They are the biggest criminal in the world. These are the people who never accept their crime. But you know, and I know, and the people know much better that these are the people who are involved in all sort of crimes in Karachi, Hyderabad, and other cities of Pakistan. So I would request the Great Britain, please take the interest to give the justice to the victimized family. अब इसी वीडियो में मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी इस उम्मीद के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस केस में इंटरेस्ट लें, इन्वेस्टिगेट करें और क्रिमिनल्स को उनके अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि एक मिसाल भी बने और लोगों को इंसाफ भी मिल सके।
میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ خدارا سوچئے کہ کیا ہم اسی طرح کرمنلز کو الیکٹ کرتے رہیں گے یا کرواتے رہیں گے تاکہ وہ گورنمنٹ میں آئیں اور ہمارے ہی سر کاٹ کے ہمارے ہی اوپر الزام لگائیں کہ ہم نے خود اپنا سر کاٹا۔ اس امید کے ساتھ میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ ہم مل کر اس ظلم کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔